سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں محمود احمد خان۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے مشترکہ خطاب سے متعلق شکریہ کی تحریک پر ہوئی بحث۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج سے شروع۔ اپنے خطبے میں ایل جی منوج سنہا نے حکومت کی حصولیابیوں کو کیا اجاگر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں کی شخصیات میں نکھار نیز ایک ترقی یافتہ سماج وجود میں لانے میں این سی سی کے رول کو کیا اجاگر۔ اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے کر رہی ہیں اوڈیشہ کا 6 روزہ دورہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا میں آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے مشترکہ خطاب سے متعلق شکریہ کی تحریک پر بحث شروع ہوئی۔ اس بحث کے لیے کل 18 گھنٹے مقرر کیے گئے ہیں۔ لوک سبھا میں آج اس تعلق سے تحریک پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر سربانند سونووال نے صدر جمہوریہ کے خطبے کو ملک کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ایک بے مثال ویژن سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس خطبے میں سماجی انصاف، شمولیاتی ترقی اور وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے سے متعلق حکومت کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ موصوف نے کہا کہ موجودہ حکومت کے لیے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس محض ایک نعرہ نہیں بلکہ حکومت کے لیے ایک رہنمائی اصول ہے۔ Social justice for this government is not about slogan. It is about dignity, delivery and direct access. For employment and development in rural area, a law named Viksit Bharat G-Ram Ji has been enacted. شکریہ کی تحریک پر کئی دیگر ارکان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے پارلیمنٹ اجلاس کے پہلے دن خطاب سے متعلق شکریہ کی تحریک پر بحث شروع ہوئی۔ راجیہ سبھا میں بحث کے لیے 16 گھنٹے مختص رکھے گئے ہیں۔ نامزد ممبر سی سادانندن نے بحث کی تحریک پیش کی۔ بی جے پی جموں کشمیر کی طرف سے آج جموں میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری اشوک کول کی صدارت میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں کل پارلیمنٹ میں وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی طرف سے پیش کیے گئے بجٹ کے تناظر میں وسیع سیاسی اور آؤٹ ریچ روڈ میپ تیار کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارلیمنٹ میں کل پیش کیے گئے مرکزی بجٹ پر مجموعی طور پر ماہرین اور عام لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے چیئرمین چھلا سری نواسلو سیٹی نے کہا ہے کہ مرکزی بجٹ بھارت کو اختراعیت اور جدید مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں عالمی مرکز بنانے کے سلسلے میں ایک اہم رول ادا کرے گا۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی عام لوگ اس بجٹ کی ستائش کر رہے ہیں۔ چند لوگوں کے تاثرات۔ میرا نام پرلاد سنگھ ہے، میں ڈسٹرکٹ رجوری کا رہنے والا ہوں۔ کیندر سرکار نے کسانوں کے لیے بجٹ لے کے آئے ہیں، میں اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے کسانوں کا اس میں پورا خیال رکھا ہے۔ اور آدرنیہ پردھان منتری جی جو 2047 کا سپنا دیکھ رہے ہیں وکست بھارت کا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سپنا ان کا ضرور پورا ہوگا۔ میرا نام ستیش کمار ہے، میں رامبن کا رہنے والا ہوں۔ اس بار بجٹ بہت اچھا ہے، جیسے کینسر کی میڈیسن کافی سستی ہوئی ہیں، موبائل سستے ہوئے ہیں اور کافی سارا سامان سستا ہوا ہے۔ یہ بجٹ جو ہے میرے حساب سے فرسٹ ٹائم ایسا بجٹ آیا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ مرکزی بجٹ سے متعلق آکاشوانی نیوز کا ایک خصوصی پروگرام آکاشوانی سری نگر سے آج رات 9 بجے نشر ہوگا۔ پروگرام کے مہمان ہیں قومی روزنامہ دی اکنامک ٹائمز کے جموں کشمیر اور لداخ کے لیے سینئر اسسٹنٹ ایڈیٹر حکیم عرفان۔ ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے آکاشوانی نیوز کے سربراہ طارق راتھر۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج سے جموں میں شروع ہوا۔ اجلاس کے پہلے دن آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایوان سے خطاب کیا۔ اپنے خطبے میں ایل جی نے کہا کہ موجودہ حکومت شفافیت، جواب دہی، ڈیجیٹل حکمرانی کے ساتھ ساتھ عوام دوست خدمات کی دستیابی کو یقینی بنانے کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے بجلی، پانی، زراعت، تعلیم، سڑک رابطوں، سیاحت، کھیل کود، شہری ہوابازی، شہری ترقی، صنعت کاری، دستکاری، سماجی بہبود، مالی شمولیات، روزگار اور دیگر اہم سیکٹروں میں پچھلے 1 برس کی حصولیابیوں اور حکومت کی سیر حاصل کاوشوں کو تفصیل سے اجاگر کیا۔
Various digital initiatives have been taken to improve the healthcare service delivery. Sehat app has been launched to bring healthcare services and patients under one digital platform. 15 lakh users have been registered so far, with the thousands of them availing various services. Tele-ICUs are being established in 7 GMCs on hub and spoke model to provide round-the-clock specialist services to the patients. Implementation of the National Education Policy, introduction of a smart classroom, Atal Tinkering Labs, STEM facilities, and ICT labs are improving learning outcomes. 396 schools are being upgraded in the PM Shri Yojana in the first phase. Urban development has gained momentum through focused implementation of the Smart City Mission, Amrit and Swachh Bharat Mission. Improvements in urban mobility, solid waste management, introduction of e-buses and pollution mitigation initiatives are enhancing the quality of life in urban centers. खुतबे के आखिर में एलजी ने तमाम अरकान पर जोर दिया कि वो बाहमी इत्तेहाद और इश्तराक नीज़ मज़ीद जिम्मेदारी से काम करके जम्मू कश्मीर को एक पुरअमन तरक्की याफ्ता शमूलियात पर मबनी खित्ता वजूद में लाने में अपना रोल अदा करें, जहाँ हर शहरी के लिए बेहतर मौक़े और उम्मीद पर मबनी माहौल दस्तयाब हो। कानून साज असम्बली में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और तमाम अरकान ने पिछले इजलास से इस इजलास तक फौत हुए अरकान को खराज अक़ीदत पेश किया। इन अरकान में गुलाम मोहम्मद खान और ख्वाजा गुलाम मोहम्मद लोन शामिल हैं। मातमी करारदादों में स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर ने इन अरकान को खराज अक़ीदत अदा करते हुए उनकी खिदमत और अवामी बहबूद के तई उनके काम को याद किया। उनकी याद में ऐवान में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। असम्बली स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर ने आज मौजूदा बजट इजलास के लिए 3 अरकान को पैनल ऑफ चेयरमैन की हैसियत से नामजद किया। इनमें मुबारक गुल, सुरजीत सिंह सलाथिया और निज़ामुद्दीन भट्ट शामिल हैं। पैनल ऑफ चेयरमैन स्पीकर मौसूफ की गैर मौजूदगी में ऐवान की कार्रवाई की सदारत करेंगे। असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर ने इजलास की शुरुआत में अरकान से अपील की कि वो ऐवान का तक़द्दुस बरकरार रखते हुए लोगों के मसाइल को उजागर करें और कार्रवाई को मुकम्मल तौर से सूदमंद बनाएं। ये ऐवान जो है ये उन लोगों की उम्मीदों, तमन्नाओं और एतमाद को रिप्रेजेंट करता है जिन लोगों ने हमें चुनकर यहाँ पर भेजा है। उन लोगों की खिदमत करना हमारे लिए एक प्रिविलेज भी है और एक प्रोफाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि एक एक मिनट जो हम यहाँ पर सर्व करते हैं वो आवाम का दिया हुआ है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें उस टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उन लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए जिन लोगों ने हमारे साथ ये तवक्कात वाबस्ता की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी से वाबस्ता लोकसभा के अरकान और जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरों पर जोर दिया कि वो मौजूदा बजट इजलासों के दौरान ऐवानों का तक़द्दुस बरकरार रखते हुए अवामी नौइयत के मसाइल को पूरी संजीदगी के साथ उजागर करें। उन्होंने अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो अवाम के साथ राबते में रहकर उनके मसाइल को उजागर करें और उनके हल को यकीनी बनाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बेलूस खदमात के जज्बे को फ़रोग देने, नौजवानों की शख्सियात में निखार लाने, नीज़ एक तरक्की याफ्ता समाज वजूद में लाने में NCC के रोल को उजागर किया है। वो आज जम्मू में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले उन NCC कैडेट्स से खिताब कर रहे थे जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में यौम जमहूरिया कैंप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि NCC नौजवानों को तरगीब देने के साथ साथ उनमें कौमी मामलात की सूझबूझ पैदा करने का रोल अदा करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सेवा के कार्यों में NCC की निरंतर सक्रियता ने समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसी भी राष्ट्र की असली पहचान उसके नागरिकों की सोच, आचरण और आपसी विश्वास से ही बनती है और यह सोच, आचरण की संपदा युवा ही तैयार करते हैं। इसलिए विकसित राष्ट्र के केंद्र में जो शक्ति खड़ी है वह युवा शक्ति है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब नौजवान सुविधा से अधिक कर्तव्य को चुनते हैं और केवल अपने हित के बजाय समाज के हित को प्राथमिकता देते हैं, तभी एक विकसित समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख NCC डायरेक्टरेट से कुल 128 कैडेट्स ने इस साल यौम जमहूरिया तकरीबात में शिरकत की थी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं।
صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा का 6 रोज़ा दौरा कर रही है। वो आज शाम भुवनेश्वर पहुंच रही है। दौरे के दौरान सदर जमहूरिया कई सरकारी, तालीमी और सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। आज जम्मू में कई अरकान कानून साजियों ने जल शक्ति और कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना के साथ मुलाकात की और अपने अपने हलकों की तरक्याती ज़रूरियात उनकी नोट्स में लाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि वो शब बारात की मुक़द्दस तकरीब के सिलसिले में तमाम मसाजिद, ज़ियारतगाहों, खानकाहों और बुक़ाजात में बिजली, पानी, सफाई सुथराई और ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंतजामात दस्तियाब रखें ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दरियासना पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज श्री बट आलमगिरी बाजार में हज़रत अहमद साहिब अब्दाल सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर उनके आस्थानी आलिया पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर के लिए दुआ की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज राज्यसभा में मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात फौरी तौर से मुनअक़द कराने से मुतल्लिक मामला उजागर किया। सत शर्मा ने कहा कि इन इंतखाबात में ताख़ीर होने से कंटोनमेंट इलाकों में तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो लोगों को दरपेश मसाइल को हल करने में नाकाम हुई है। श्रीनगर में आज मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि वादी के लोग गूनागूं मसाइल से दो चार हैं। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज श्रीनगर में सेरीकल्चर महकमे के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट की मौजूदगी में सेरीकल्चर महकमे के अपने नोयत के पहले सहमाही जरीदे की रस्म रोनामाई अंजाम दी। इस जरीदे में जम्मू कश्मीर में गुंजाई अबरेशम की सन्नत की पेशरफ्त को उजागर किया गया है। सूबाई कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि सेरीकल्चर सेक्टर जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी मंजरनामे को दवाम बख्शने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। आज आबी पनागाहों को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने का आलमी दिन है। आज के दिन हयातियाती तनाव और माहौलियाती निज़ाम को तक़वियत बख्शने में आबी पनागाहों के रोल को उजागर किया जाता है। इस दिन की अहमियत से लेक एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन मंजूर अहमद कादरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो लेक्स हैं ये हमारे पूरे हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम का एक हिस्सा है जिसका काम फ्लड्स को रोकना है या पानी का जो जमीन के अंदर पर्कुलेशन है, रिजुविनेशन ऑफ वाटर सिस्टम, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, उसके लिए बहुत जरूरी। तीसरा, ये वेटलैंड्स हमारे जो बर्ड्स हैं या बाकी फौना है और फ्लोरा है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। आज की डेट में हमने यहाँ पर डाल में भी और वुलर में इंटरनेशनल वेटलैंड के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। इसमें हमने लोगों को जो यहाँ लेक के साथ वाबस्ता हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनका हमने पूरी तरह से इसकी इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की ताकि हमारी वजह से लेक में कोई नुकसान न हो, लेक प्रिजर्व रहे और जो इसके साथ एफिलेटेड जो वाटर बॉडीज हैं या जो फाना और फ्लोरा है वो भी पूरी तरह से प्रिजर्व रहे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आज 11वीं जमात के रेगुलर इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया। इस इम्तहान में कुल 81,573 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 83.27% उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। नताइज के बारे में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन शेख गुलाम हसन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, टोटल बच्चे जो थे वो 81,573 थे, जिसमें 67,932 बच्चे कामयाब हुए हैं। इस तरह से जिनका रेपियर है वो कोई 13,000 बच्चे हैं और जो फेल हुए हैं वो 760 हैं। जो भी क्वालिफाई हुए हैं इन सारे बच्चों को और उनके वालिदैन को मैं मुबारकबाद करता हूं। और जो किसी वजह से फेल हुए हैं बहुत ही कम बच्चे हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे वो बायनवल में फिर से ये अपना और एक चांस देख इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इन बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको देखना पड़ेगा कि एक सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगी कि कहां पर हमारी खामी रही है, कमजोरी रही है और थोड़ा सा मेहनत और करने की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बायनवल में ये बच्चे पास हो जाएंगे। पूरी दुनिया में 4 फरवरी को कैंसर मुखालिफ बीमारी दिन होता है। इस दिन की मुनासिबत से सरकार से तस्लीम शुदा कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की तरफ से लाल नगर छानापुरा में कैंसर बीमारी से मुतालिक एक मुफ्त बेदारी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है।
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता, परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मंशियात एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूह और जिस्म दोनों को खा जाता है। मंशियात एक खामोश कातिल है जो वक्त के साथ साथ इंसान को ख़त्म कर देता है। हमें बहसती वालिदैन, उस्ताद और शहरी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि हम अपने नौजवानों को इस लानत से बचा सके। अगर आज हमने इस मसले के खिलाफ आवाज न उठाई तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। आइए मिलकर एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखें जो मंशियात से पाक, सेहतमंद और पुरअमन हो। आईजीपी जम्मू भीम सिंह तोती की सदारत में जम्मू में पुलिस अफसरों की एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिस दौरान मौजूदा माली साल के लिए किए गए मुकर्रर अहदाफ की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ जिलों के पुलिस सरबराहान ने अपने अपने जिलों का खाका पेश किया। जम्मू में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गुरमीत सिंह और परविंदर कौर नामी दो मनशियात फरोशों के कब्जे से एक नाके के दौरान 8.5 किलोग्राम चरस बरामद करके उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुटवा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 2 मनशियात फरोशों जसबीर सिंह और प्रदीप सिंह को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नशीली अशिया बरामद करके गिरफ्तार किया। पुलिस ने सांबा में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के इश्तराक से 2 मेडिकल शॉप्स को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की खिलाफवर्जी की पादाश में सरबेमुहर किया है। आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जानकी नाथ भट्ट का आज पुणे महाराष्ट्र में इंतकाल हुआ। वो महजूर नगर श्रीनगर से ताल्लुक रखते थे। उनके फौत होने पर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह गुरबिंदर सिंह, डीडी प्रमोद कुमार, प्रोग्राम हेड गुलाम रसूल आखुन के अलावा कंट्रोल रूम, रीजनल न्यूज़ यूनिट और इंजीनियरिंग अमले ने दुख का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 9.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:27 और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:03 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी जबान में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।